over here, respected teachers, seniors, and my dear friends. Today, I, Chakshi Yadav, and I, Kanika Mehra, speaker number 2. Speaker number 3, Divya Yadav. Speaker number 4, Arpan Singh. Speaker number 5, Naeem Ali. are here to press COVID-19 and insight into cellular changes. We all are concerned only about one thing. I think you all know what I'm talking about. Yes, that's COVID. I don't know whether you people start your day with the happening or discoveries on this topic or not, but I'm damn sure that in the course of whole day, maybe just for once, but it is there in our talks. We all are seeing dramatic spread of novel coronavirus around us. I don't think so. There is a need of mine to tell you people about corona as it is a very current topic in our speech nowadays. But yes, there is a need to let you people correctly differentiate between the name of disease and the virus. As we are seeing here, आप यहाँ पर देख सकते हैं that this person knows about corona but confused. He is confused what is virus and what is disease. उसको पता है कोरोना क्या है but वो confused है. SARS में 1, 2, 3 क्या signify करता है? COVID disease है या virus है? So let's make him understand virus. Corona. What is corona? Corona is a very broad term in which many viruses are there, and the family is Coronaviridae. Now, what is coronavirus? SARS-CoV-2, that is Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, is the virus which is responsible for the pandemic of 2020. इससे पहले 6 viruses discover हुए थे, and this is the 7th one. And what is disease? So, COVID-19 is coronavirus disease. 2019 nCoV is the another name. 2019 that is novel coronavirus. 2019 novel coronavirus. ये भी वही name है, same disease का. Now coming to our main topic, which we are going to discuss today, is pathogenesis, in which first is evolution. When, where? So in 1960s, सबसे पहले human coronavirus discover किया गया था. Then in 2002, SARS-CoV. That's the same, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus, and it is discovered in Guangdong Province, China. Then after 10 years, we have MERS-CoV, that is Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus in Arabian Peninsula. इसका सबसे ज़्यादा effect CoV-2. This recent outbreak of SARS-CoV-2 was province China. After this, we have some important dates जिन पे WHO ने कुछ important declarations किए थे. On Jan 30, 2020, it is declared as an outbreak to be a public health emergency of international concern. Feb 11, 2020, it is named as SARS-CoV, and in March, finally, it is declared as pandemic and is still going. Until date, we have no vaccine. There are still many other. We have prevention is the only cure. Here we have a small introduction. We all know that this disease has maximum affections on respiratory system of our body. Earlier, it was identified as a cause of common cold, and that time it was non-fatal. Because उस time पे इस virus के इतने affections नहीं देखने को मिले थे. We will see ahead that its structure has an appearance like crown. Because of the spikes present, that's why it is named as corona. So इसमें जो coronavirus name दिया गया है, तो उसमें corona means crown-like appearance. Coming to the structure of coronavirus, it has round spherical structure with unique projections, जिनको हम spike बोल रहे हैं. आप इस microscopic picture में भी छोटे-छोटे से corona spikes देख सकते हैं. Round. It has single-stranded RNA. Viron is 125 nanometer in length and genome is 26 to 32 kb. And this genome is the largest one known among all the viruses. इसमें 4 structural proteins होते हैं: spike, envelope, membrane, and nucleocapsid. As you can see here in the diagram, all the proteins.
Envelope of the virus is made up of lipid bilayer in which structural proteins are anchored, that is M, E, and S. M protein is the main structural protein of the envelope that provides overall shape, and E proteins are minor structural protein and the size and shape. Coming to the S protein, it is very important as coronavirus, its characteristic structure, and secondly, it helps in receptor binding. Moving to the risk factors, there are some conditions which make people more prone towards infection, also includes people who are at higher risk of getting infected. So people, chronic lung disease, kidney disease, cardiovascular disease, diabetes, patient on dialysis, वो पेशेंट जो बहुत टाइम से इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स ले रहे हैं, obese people. And yes, the most frequently mentioned factor increasing the risk is higher age. The elders, more than 65 years of age, are more prone. We can say that the individual who are at extremes of life are more prone, like infants, elders, उनमें ये infection ज़्यादा affect करेगा. Then we have one more factor, pregnancy, a higher risk of severe illness in pregnant ladies. And these are some important mild symptoms which we can see easily if the person is infected, like बुखार आना, ठंड लगना, cough, diarrhea, headache हो जाना, सांस लेने में तकलीफ होना, nausea or vomiting, anosmia, that is loss of smell. Coming to the pathogenesis, we all know that coronavirus attacks and specifically type 2 pneumocyte cells of alveoli, in which ACE2 receptors are present on which the virus binds. This we will see in the steps of pathogenesis. So these are the various steps of pathogenesis from virus entry to the immune response. It causes body. Virus enters into the body and spreads, then replicate and multiply. In pathological findings, we can see lungs showing desquamation of pneumocytes, ARDS, that is acute respiratory distress syndrome, marks the collection of fluid in the air sacs of lungs, and after that causing severe lung injuries. Cytokine storm, it is aggressive inflammatory response, and an immune dysfunction, as the name suggests, immune disorders, including all the critical conditions related. Here we have step 1, virus entry and spread. Coronavirus enters the body through the opening like mouth, nose, and transmitted via respiratory droplets. Enter होने के बाद it binds to ACE2 receptors, that is angiotensin converting enzyme 2. ACE2 receptors हमारी body में majorly lungs, liver, kidney and heart के cells के surface पे present. Lung pneumo 2 cells. I've told you earlier that spike protein is for receptor binding and fusion with the host cell membrane. You can see here too in the diagram that S protein binds with ACE2 receptors and finally enters into the cell. At this stage, some patients remain asymptomatic और कुछ में बहुत mild symptoms develop होते हैं. So some people also develop non-respiratory affections like diarrhea, acute organ injuries. To replication and multiplication, majority of virus present follows the same mechanism of replication and multiplication in the host cell. Almost सबका एक ही mechanism देखने को मिलता है, which includes translation, transcription. So first of all, after entering into the host cell, virus releases its RNA in the cytoplasm. Then acts like mRNA and translate by using host cell ribosome, results in formation of various types of proteins. Parallelly, जो virus का RNA होता है, with the help of RNA-dependent RNA polymerase, forms many RNA in the cytoplasm. Then newly formed, which comes out and infects the other cell. It's a diagrammatic representation showing the viral entry into the cell. So the virus entry into the cell membrane with help of ACE2 receptors, then translation with the help of host cell ribosome, proceeded with formation of new RNA, then formation of new coronavirus, which came out and infection proceeds further. After this,
For the further steps, speaker number 2. Pathological findings. As Shakshi already discussed about virus entry, spread and replication. हमने देखा replication की लास्ट स्टेज में न्यूमोसाइट टाइप 2 जो सेल्स है उनके सेल मेम्ब्रेन बर्स्ट होती है और वो अदर सेल्स को इन्फेक्ट करना स्टार्ट करता है, जिससे डिजीज आगे की तरफ प्रोग्रेस करती है. तो पैथोलॉजिकल फाइंडिंग की जब हमने फर्स्ट रिपोर्ट को देखा तो कोविड-19 के सीवियर पेशेंट में लंग्स में पल्मोनरी बायलेटरल डिफ्यूज डैमेज, जिसके अंदर दोनों लंग्स एक साथ डैमेज होना शुरू कर देते हैं विद सेलुलर फाइब्रोमिक्सोइड एक्सिडेट्स. इट इज अ काइंड ऑफ अ सेलुलर फाइब्रस सब्सटेंस विच इज अ म्यूकस लाइक सब्सटेंस जो रिलीज होते हैं, और लंग्स में जो न्यूमोसाइट टाइप 2 सेल है वो डीस्क्वेमेट होती है. नॉर्मली जो न्यूमोसाइट टाइप 2 सरफेक्टेड को मेंटेन रखने का काम करती है एंड इट आल्सो लोअर्स द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, साथ में गैसेस एक्सचेंज की कैपेबिलिटी को भी इंक्रीज करती है. बट अब जब न्यूमोसाइट डैमेज होती है तो उसके साथ साथ हाइलाइन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है जो ARDS को इंडिकेट करती है. Along with this, due to accumulation of fluid, लंग में एडिमा होता है विद हाइलाइन मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, जो ये सजेस्ट करती है ARDS को. Now let's move on to ARDS. What is ARDS? ARDS is acute respiratory distress syndrome. Why we call it ARDS? Acute here because इसका onset जो है वो rapidly होता है, within a week ये start हो जाती है और respiratory system में को fail करने का काम करती है, जिसमें shortness in breathing और hypoxia की condition आती है. ARDS की कंडीशन में ब्लड ऑक्सीजन लेवल फॉल होता है विद द इन्फ्लेमेशन ऑफ होल लंग, प्लस एयर सैक्स के अंदर फ्लूइड कलेक्ट होने लगता है जिससे ऑक्सीजन अदर ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाती है. व्हाई फ्लूइड एक्यूमुलेट हियर? जब वायरस एंट्री करके रेप्लिकेट करता है तो न्यूमोसाइट जो है टाइप 2 वो बर्स्ट होती है और कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रिलीज करती है, और ये मार्कर्स एल्वियोलर स्पेस में एंटर करते हैं और वेजोडाइलेशन की तरह एक्ट करते हैं, which causes pooling of blood. In contrast, vasodilation of alveolar capillaries result in increased permeability to plasma enter in interstitial spaces and accumulate, which lead to compression of alveoli because fluid enter into alveoli, which causing edema. Because यहाँ पर ऑक्सीजन अदर ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच रही है, जिस वजह से ब्लड स्ट्रीम तक ऑक्सीजन आ नहीं रही है और ब्लड ऑक्सीजनेट नहीं हो पा रहा है, तो बाकी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिस वजह से ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कॉज करता है. प्लस इट कॉजेज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एंड इंक्रीजेस मोर्टेलिटी रेट. इट कैन अकर इन दोज हु आर क्रिटिकली इल हु गेव सिग्निफिकेंट इंक्रीजिंग विद इलनेस. जैसे जैसे एज बढ़ जा रही है या फिर इलनेस जितनी ज्यादा है उसकी कंडीशन उतनी ही ज्यादा सिवियर हो. और ACE2, इंटरल्यूकिन 10, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर TNF, vascular endothelial growth factor among others have been considered to be associated with development or outcome of ARDS. Another thing is increased level of plasma. Interleukin 6, interleukin 8 were also related to adverse outcome of ARDS. Interleukin 6 और interleukin 8 ARDS के को demonstrate करने में helpful होते हैं. This is the diagram which shows how alveoli destroy. In this lung X-ray, it shows some ground glass opacity with condition होती है पेशेंट की सीवियर कंडीशन में. तो जितना ज्यादा वाइट आउट होगा और जितनी ज्यादा लंग ओपेसिटी शो करेंगे ये उतनी ही पेशेंट की सीवियर कंडीशन को शो करेगा. मोर द वाइट आउट सीवियर द कंडीशंस. नाउ लेट्स मूव ऑन. व्हाट इज साइटोकाइनिन? साइटोकाइनिन इज अ मैसेंजर which यूज फॉर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो इम्यून सिस्टम की सेल्स के बीच में एक तरीके के मैसेज को सेंड करने का काम करता है. जब इम्यून सिस्टम के एक सेल को पता लगता है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर कर रहा है तो ये अदर सेल्स को इन्फॉर्म करती है बाय रिलीजिंग साइटोकाइनिन टू किल देम. बट व्हेन SARS-CoV-2 एंटर्स इन बॉडी तो साइटोकाइनिन नॉर्मल इसका काम है कि इनको किल करे, बट इन्हें किल करने की बजाय ये हाइपर एक्टिवेट हो जाता है और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन शो करता है. इनिशियल ऑनसेट में जब रैपिड वायरल रेप्लिकेशन होता है तो कुछ एपिथेलियल और एंडोथेलियल सेल्स को डैमेज करने लगता है और प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस और कीमोकाइंस रिलीज करता है. ऑन द बिहाफ ऑफ इट किलिंग SARS-CoV-2 वायरस, इट किलिंग देयर ओन सेल मींस होस्ट सेल को किल करने लग जाता है. और साइटोकाइनिन एक स्टॉर्म की तरह फैलता है जिस वजह से इसको साइटोकाइनिन स्टॉर्म कहा गया है. SARS-CoV-2 hijacks the same entry receptor ACE2 SARS-CoV-2 for infection, suggesting the likelihood of the same population of cells being targeted and infected.
Loss of pulmonary ACE2 function has been proposed to be related to acute lung injury because ACE2 down-regulation and shedding can lead to dysfunction of RAS, renin-angiotensin-aldosterone system, and further enhance inflammation and cause vascular permeability. In normal condition, ACE2 maintain the RAS, but जब SARS-CoV-2 ACE2 के साथ आके बाइंड हो जाता है तो RAS मेंटेन नहीं रह पाता, जिस वजह से इन्फ्लामेशन कॉज होता है और वेस्क्यूलर परमेबिलिटी होती है. This diagram shows how cytokinin storm burst and an inflammatory response begins to destroy their own healthy cells, leading to acute lung injury. Now, immune dysfunction. Immune dysfunction में जो है ये mainly start होती है और peripheral CD4 और CD8 cells जो है reduction show करेगी start में और hyperactivate हो जाएगी in severe patient. CD4 और CD8 cells की कंसेंट्रेशन हमें हाई मिलती है, जो ये सजेस्ट करती है कि एंटीवायरल इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट हो चुका है, प्लस एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स हो रहा है. विद द एडिशनली several studies have reported that lymphopenia, which means decrease of WBC in a common feature of COVID-19, suggestive of critical factors accounting for severity and mortality. Excessive infiltration of monocyte, macrophages and T cells, systemic cytokine storm, pulmonary edema, pneumonia, immunosuppression, destructive tissue inflammation, inefficient T or B cells, several diseases, prolonged viral clearance, lymphopenia, which means decreased WBC, widespread inflammation, multi-organ damage and DIC. DIC is disseminated intravascular coagulation, जिसके अंदर blood clot होने लगता है और वो small blood vessels को damage करने लगता है. Thank you. Now Divya will continue further. Incubation period. Now we are coming to incubation period. Infection और डिजीज के सिम्टम अपेयर होने के बीच के टाइम को अपन इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, जो कोविड-19 डिजीज में 2 to 14 डेज का होता है. Now we move to stages of infection. Stage 1, asymptomatic stage और early stage. SARS-CoV-2 वायरस है, वो बाइंड करता है एपिथेलियल सेल से और रेप्लिकेट करता है नेजल कैविटी में. वायरस पर्सन्स इस स्टेज में ड्राई कफ, कोल्ड, हेडेक, टायर्डनेस जैसे हैं. ACE2 मेन रिसेप्टर होता है SARS-CoV-2 के लिए, और ACE2 receptor are broadly present in major organs like heart, kidney, liver and lungs. In this stage, virus propagates, but innate immune response बहुत limited होता है. वायरस को हम इस स्टेज में नेजल स्वैब से डिटेक्ट कर सकते हैं. इस स्टेज में माइल्ड सिम्टम्स इसलिए शो होते हैं क्योंकि जो वायरल बर्डन होता है वो बहुत कम होते हैं, नहीं दिखने को मिलती बॉडी में. तो RT-PCR टेस्ट से हम वायरल कर सकते हैं. नाउ स्टेज 2, पल्मोनरी स्टेज. वायरस प्रोपेगेट एंड माइग्रेट डाउन टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक. अब इन दिस स्टेज जो इनेट इम्यून रिस्पॉन्स है वो ट्रिगर होता है वाइग्रेसली. जो इम्यून वायरस है वो अटैक करता है इम्यून सिस्टम को और जो उसकी फंक्शनिंग है उसको डिसेबल कर देता है. इतना स्ट्रांगली अफेक्ट करता है इम्यून सिस्टम को कि वो फर्दर डिस्ट्रक्शन करता है और रिजल्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इंटेंस कफिंग, लो ऑक्सीजन लेवल जैसी रेस्पिरेटरी कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं. और इस स्टेज में जो SARS-CoV-2 वायरस है वो नेजल स्वैब और स्पूटम के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं. और कोविड-19 जो डिजीज है क्लिनिकली मैनिफेस्ट हो जाती है, मतलब आप देख के बता सकते हो कि जो पेशेंट है वो कितना इन्फेक्टेड है. Now coming to the next stage, stage 3, hyperinflammatory phase. About 20% of infected person will progress to stage 3. वो उनके अंदर पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट और बहुत ही सीवियर डिजीजेस डेवलप हो जाती हैं.
इस स्टेज में वायरस गैसेस एक्सचेंज यूनिट ऑफ लंग्स तक पहुंचता है और वहां वो इन्फेक्ट करता है एल्वियोलर टाइप 2 सेल्स को। SARS-CoV-2 वायरस प्रोपोगेट करता है विद इन टाइप 2 सेल्स और लार्ज नंबर ऑफ वायरल पार्टिकल्स करता है। इस वजह से जो नंबर ऑफ से वो डिक्रीज हो जाते हैं लंग्स में और सेकेंडरी पाथवे ट्रिगर होता है एपिथेलियल रीजनरेशन के लिए। इस स्टेज में हाइपर इंफ्लेमेटरी कंडीशन मेजर ऑर्गन्स में मार्क होती है, इसलिए ये स्टेज बहुत रिस्की और फैटल होता है और इसमें जो वायरस है वो इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ जो ऑर्गन है उनको भी इंजर्ड करता है। इसलिए इस स्टेज में हम एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिकेशन लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को सजेस्ट। पैथोलॉजिकल रिजल्ट्स जो कोविड-19 डिजीज के होते हैं वो एल्वियोलरी डैमेज जो हमने पहले भी पढ़ा था और जो कुछ मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स में भी देखने को मिलते हैं। और इस स्टेज में जो चिल्ड्रन और ओल्ड एज पीपल होते हैं क्योंकि उनकी ऑलरेडी जो इम्यूनिटी है वो बहुत वीक होती है और उनमें रिपेयर करने की एबिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है। Let's understand this graph. On x-axis time course है, on y-axis severity of illness है. Patient may go into two different phases: viral response phase, which is represent viremia, and second host inflammatory response phase or immune phase. हमें पता है कि वो 3 स्टेजेस से भी जाएगा, तो अर्ली स्टेजेस में जो सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं वो बहुत माइल्ड होते हैं, जैसे फीवर, कफ, हेडेक। अगर नहीं होता तो वो सेकेंड स्टेज की तरफ प्रोग्रेस करता है और सेकेंड स्टेज में जो सिम्टम्स उस पेशेंट में आते हैं वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, लो ऑक्सीजन लेवल, हाइपोक्सिया जैसी कंडीशन मिलती है। फिर बहुत कम कुछ लोग ही हाइपर इंफ्लेमेटरी फेज की तरफ प्रोग्रेस करते हैं जिनमें ARDS, सिस्टमिक इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम विद शॉक, कार्डियक इंजरी जैसे सिम्टम्स शो होते हैं। Patient score on this graph may fluctuate its states with increasing symptoms. However, patient may get better by the end of first week before the start of the host immune inflammatory response phase. And this is why we have seen the biphasic course of this disease in some of those patients when symptoms may get better initially before they get worse. So in terms of treatment, it probably makes sense to start thinking that antiviral medication या जो plasma transfusion है वो better result show करेगी viral response phase में as compared to host inflammatory response phase. Now Arpan will continue. So now we will discuss effects on the different organs. So as we all know, coronavirus mainly respiratory system को affect करता है, लेकिन इसके साथ साथ वो और भी organs को affect करता है, that we will know now. That is like CNS में neurological effects reduce करेगा, renal करेगा के ऊपर भी, kidney के ऊपर भी effect आएंगे। अर्पण, आई एम रियली सॉरी टू डिस्टर्ब यू। आप अपना माइक्रोफोन थोड़ा सा दूर रखिए। ऑलराइट। इसके इफेक्ट्स अपने हेपेटिक लिवर के ऊपर भी इसके इफेक्ट देखेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर, स्किन के ऊपर डर्मेटोलॉजिकल इफेक्ट्स आएंगे, कार्डियक हार्ट के ऊपर इसके इफेक्ट्स देखेंगे और थ्रोम्बोएम्बोलिक इफेक्ट के अंदर अपने स्टडी करेंगे। नाउ जैसे कि हमें पता है कि कोरोना वायरस मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करेगा, तो इसलिए हमने फर्स्ट पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑन द लंग्स। और लंग्स को इफेक्ट वो मेनली कर रहा है बिकॉज ACE2 जो रिसेप्टर्स है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं इसके लंग्स के पार्ट में। बट ACE2 ऑल्सो प्रेजेंट इन मेनी ऑर्गन, और इसके अपने इसोफेगस होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सभी के अंदर ACE पर मिलेंगे। सो इफेक्ट ऑन द लंग्स में देखेंगे तो इसके अंदर लंग्स के कॉम्प्लिकेशन सच एज निमोनिया, इन द मोस्ट सीवियर केसेस ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। लंग्स कॉम्प्लिकेशन के अंदर निमोनिया और ARDS हमें मिलती है। निमोनिया इज जस्ट कि स्मॉल पार्ट के अंदर, लंग्स के स्मॉल एयर सैक के पार्ट के अंदर फ्लूइड का अकमुलेशन होना शुरू हो जाता है, फ्लूइड फीलिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ऑर्गन्स को लिमिटिंग हो जाती है। और ARDS एक सीवियर कंडीशन है
जब निमोनिया प्रोग्रेस होता है धीरे धीरे, तब ARDS की कंडीशन अपीयर होती है, फेलियर की कंडीशन आ जाती है और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, बिकॉज एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड फिल हो चुका है, तो अब गैसियस एक्सचेंज पार्ट नहीं ले पाएगा। जब गैसियस एक्सचेंज पार्ट नहीं ले पाएगा तो ऑर्गन्स, जो बाकी वाइटल ऑर्गन्स है, जो टिश्यूज हैं, उनके पास टेंडेंसी, तो इससे क्या होगी, मल्टी ऑर्गन की। नाउ इसके अंदर सेप्सिस की भी कंडीशन अपने को मिलेगी, दैट इज अनदर पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ COVID-19 एंड कैन कॉज लास्टिंग हार्म टू लंग्स एंड अदर ऑर्गन्स। The pneumonia that COVID-19 causes tends to take hold in both lungs. Normal pneumonia अंदर मिलता है, लेकिन COVID-19 pneumonia both lungs के अंदर start होगा. Air sacs in the lungs fill with fluid, limiting their ability to take in the oxygen and causes shortness of breath, cough and other symptoms. और यही है COVID-19 का निमोनिया प्रोग्रेस करेगा, धीरे धीरे ARDS की तरफ बढ़ेगा, स्टेप्स इंक्रीज होंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इंक्रीज होगी, बिकॉज गैसेस एक्सचेंज धीरे धीरे और कम होता जाएगा जैसे जैसे एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड का अकमुलेशन होता जाएगा, और ARDS की कंडीशन फाइनली अपीयर हो जाएगी, अ फॉर्म ऑफ लंग फेलियर, एंड दैट इज अनदर पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ COVID-19, दैट इज सेप्सिस. तो बेसिकली सेप्सिस is a condition in which chemicals are released into blood stream. ब्लड स्ट्रीम के अंदर केमिकल रिलीज किए जाते हैं टू फाइट द वायरस, जो भी इन्फेक्शन ब्लड के अंदर आया उसको फाइट करने के लिए, और ये मल्टीपल ऑर्गन्स को हार्म कर सकते हैं और कैन कॉज डेथ, क्योंकि जहां जहां ब्लड जाएगा वहां वहां वो इन्फेक्शन भी ट्रेवल करेगा, उसके साथ साथ केमिकल भी ट्रेवल करेंगे, तो दिस कैन कॉज हार्म टू द ऑर्गन्स एंड द टिश्यूज. Now in this chart here, this is shown the transmission of the virus by droplets. These are the some common symptoms like fever, headache, shortness of breath, and here is healthy air sac. Healthy air sac alveoli के अंदर आप देख सकते हो कि जो एयर सैक है इसके अंदर आप देख सकते हो कि गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन जो इन्फेक्टेड एयर सैक है जिसके अंदर फ्लूइड भर गया है वहां पे ऑक्सीजन और CO2 के अंदर एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है. That will cause shortness of oxygen or limiting of the oxygen in the body. Now we will discuss if. तो बेसिकली काफी स्टडीज में ये भी पता चला है कि COVID-19 का जो इन्फेक्शन है, जो कोरोना का इन्फेक्शन है, वो मेनली कोई हार्ट की डिसीज है, जिनको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, उनको ये कोविड होने के चांसेस थोड़े रिस्क फैक्टर ज्यादा रहते हैं, चांसेस ज्यादा रहते हैं. So hypertension, diabetes, heart failure and coronary artery disease are the most common particular comorbidities that have been identified. मतलब है कि एक ही टाइम पे एक ही पर्सन के अंदर मल्टीपल मेडिकल कंडीशन मिल रही है जो किसी इन एनी वे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही है, एक दूसरे के साथ उनका कोई ना कोई रिलेशन है. लाइक हियर हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट फेलियर एंड कोरोनरी आर्टरी डिसीज किसी न किसी तरीके से एक दूसरे के साथ लिंक है. हाइपरटेंशन है, इसके अंदर हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, तो उसके कंडीशन हाई ब्लड प्रेशर के कारण हार्ट को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, जिसके कारण को अगर इन्फेक्शन हो गया है तो हार्ट फेलियर की कंडीशन आ सकती है ड्यू टू जो इसकी मसल्स है उनका अगर इंजरी हो जाए तो. नाउ COVs such as SARS, MARS and COVID-19 have mainly been associated with a number of cardiovascular complications such as myocardial shock, cardiac arrhythmia and heart failure. ये सभी एसोसिएटेड रहती हैं बिकॉज मायोकार्डाइटिस, जो मायोकार्डियम जो मसल या जो लेयर है हार्ट वॉल की मिडल लेयर, वहां पे ACE2 के रिसेप्टर्स ज्यादा, इसलिए ये हाई रिस्क पे रहती है इन्फेक्शन के. जब इन्फेक्शन हार्ट के अंदर एंट्री कर जाएगा तो इस सबसे इसके ऊपर भी इफेक्ट आएगा. मायोकार्डाइटिस मतलब कि उस लेयर का इन्फ्लामेशन हो जाएगा, उस लेयर को इंजरी हो रही है, मायोकार्डियल इंजरी, और इसके कारण जो इन्फ्लेमेशन जो हुआ है उसके कारण हार्ट जो है वो वीक हो जाएगा, जिसके कारण हार्ट फेलियर और सडन डेथ कैन अकर ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन. नाउ मायोकार्डियल इंजरी, दैट इज मायोकार्डियल इंजरी एक टर्म हम पेशेंट के साथ तब ऐड करेंगे जब उस पेशेंट में जो कार्डियक ट्रोपिन CTN का जो कंसंट्रेशन है वो अबव 99 परसेंटाइल URL मीन अपर रेफरेंस लिमिट जो एक सेट की गई है 99 परसेंटाइल से अबव चला जाए अगर CTN का कंसंट्रेशन लेवल, तब अपने उस पेशेंट के साथ मायोकार्डियल इंजरी ऐड कर सकते हैं. और जब इन्फेक्शन, कोविड का इन्फेक्शन, जो कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन हुआ है उसमें ये लिमिट क्रॉस हो जाती है, इसलिए मायोकार्डियल इंजरी वहां पे हो जाती है. नाउ कार्डियक शॉक एक सीरियस कंडीशन है जिसके अंदर हार्ट कैन नॉट पंप इनफ ब्लड and O2 to brain, kidney and to other vital organs because of damaged heart muscles. तो ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, कार्डियक शॉक है.
कार्डियक एरिथमिया है इज लाइक टू फास्ट और टू स्लो हार्ट रेट हो रही है, जिसका रीजंस काफी हो सकते हैं, जैसे साइनस टैकीकार्डिया हो गया, टू फास्ट हार्ट रेट होगी, या फिर साइनस ब्रेडिकार्डिया हो गया जिसके अंदर टू स्लो रेट हो जाती है। सो दीज आर। और कोरोनरी आर्टरी डिसीज जो अपने सीएडी देखा था, उसके अंदर प्लेक एक कोलेस्ट्रोल कंटेनिंग का प्लेक बन जाता है, जिसके कारण कि जो कोरोनरी आर्टरी है जो कि ब्लड को ऑक्सीजन, हार्ट को ब्लड ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगी, उसके अंदर उसकी जो ल्यूमन है वो नैरो हो जाएगी और वो उसकी सप्लाई लिमिटिंग हो जाएगी, तो ब्लड हार्ट के अंदर ब्लड कम पहुंचेगा, जिसके कारण हार्ट के फेलियर के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, बिकॉज हार्ट के पास प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच रहा है। सीएडी जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज है हार्ट फेलियर का। और जो मोर्टेलिटी रेट है, द मोर्टेलिटी रेट फॉर कार्डियक वैस्कुलर डिसीजेस दैट इज 10.5% is bigger as compared to patients with chronic respiratory disease. Chronic respiratory disease का mortality rate is 6.3%, और जो cardiovascular diseases का है वो उससे ज्यादा होता है in presence of viral infection because of the imbalance between the increased metabolic demand and reduced cardiac reserve. क्योंकि मेटाबॉलिक डिमांड इंक्रीज हो रही है, ब्लड को ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करनी है, दूसरे ऑर्गन्स की तरफ पास ब्लड भी लेके जाना है, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सब सप्लाई हार्ट को करना पड़ेगा ब्लड के थ्रू, तो वो डिमांड्स इंक्रीज होगी, लेकिन हार्ट फेलियर की कंडीशन के अंदर हार्ट जब सप्लाई कर ही नहीं पा रहा है तो जो मोर्टेलिटी रेट है इसलिए यहाँ पे हाई रहता है। देयरफॉर पेशेंट्स विद सीएडी एंड हैव अ हाई मोर्टेलिटी रेट। इन फिजियोलॉजिकल कंडीशंस ACE, angiotensin converting enzyme, is a master regulator for renin angiotensin system and one of the best in target enzymes for the treatment of hypertension. Hypertension हो रहा है तो वहाँ पे ACE2 जो एंजियोटेंसिन सेकंड को फर्दर एंजियोटेंसिन के अंदर कन्वर्ट करेगा, तो वो एज अ डायलेटर एक्ट करेगा, बिकॉज एंजियोटेंसिन सेकंड इज एक्सट्रिक्टर जो कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, वहाँ पे ACE2 एज अ डायलेटर एक्ट करके ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करेगा, तो एज अ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। AC2 is widely expressed in cardiac tissues. Cardiac tissues के अंदर AC2 widely expressed है, जैसे कि कार्डियोमायोसाइट्स में, फिब्रोब्लास्ट में, कोरोनरी एंडोथेलियल सेल्स के अंदर, इसलिए यहाँ पे जो रिस्क है कोरोना इन्फेक्शन का वो इंक्रीज रहता है। The cardiovascular tissues or cell expressing AC2 are possibly at extreme risk for SARS COVID-2 infection. So in this chart यहाँ पे दिखाया है कि कार्डियक इंजरी इंसिडेंस मोर्टेलिटी रेट दिखाए गए हैं कि कार्डियक इंजरी के अंदर इंसिडेंस 20% है तो मोर्टेलिटी रेट उसका 50% मिलेगा। स्ट्रोक के इंसिडेंस 3% होते हैं और मोर्टेलिटी रेट उसका 40 होता है, एंड सो ऑन। दीज आर शोन इन दिस फिगर। नाउ लेट अस सी द इफेक्ट्स ऑन जीआईटी। जीआईटी के जो इलियम पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन का कोलन पार्ट फ्रॉम इलियम, इन सब के अंदर ACE2 के रिसेप्टर्स होते हैं, तो इनको भी हाई रिस्क रहता है कोविड के इन्फेक्शन का। तो यहाँ पे COVID-19 इज रिपोर्टेडली कॉजिंग डायरिया, वॉमिटिंग एंड अदर GI सिम्टम्स। चाइना के अंदर एक स्टडी हुई थी, जितने भी पेशेंट वहां पे एडमिट हुए थे उनमें से हाफ पेशेंट के अंदर GI सिम्टम थे। कौन से सिम्टम थे? लाइक डायरिया, वॉमिटिंग, नोजिया, बर्पिंग, हार्टबर्न, एनोरेजिया, ये काफी सिम्टम्स है जो कि GI के अंदर कोविड के GI के ऊपर जो इफेक्ट आते हैं उसके ये सिम्टम्स हैं। और एक चाइना के अंदर स्टडी के अंदर भी प्रूव हुआ था कि हाँ, जो पेशेंट्स एडमिट हैं उनके 50% पेशेंट्स के अंदर GI सिम्टम्स प्रेजेंट है। सो लॉस ऑफ एपेटाइट एंड एब्डोमिनल पेन आर द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स सीन इन कोरोना पेशेंट्स। तो ये भी बहुत कॉमन है, जैसे कि लॉस ऑफ एपेटाइट एंड एब्डोमिनल पेन सिम्टम जो कि कोरोना पेशेंट्स के अंदर सीन होते हैं। So that's all, and now Naim will continue with the remaining organs. और स्लाइड विजिबल है? नहीं नायू, स्लाइड विजिबल नहीं है अभी नहीं। नो, अभी है? नो नो, ट्राई वंस अगेन।
Yeah, now it's visible. Thank you. Now we will discuss effects on CNS. As we all know, जैसे जो भी हमारे सेंसेस हैं लाइक स्मेल, टेस्टिंग या विजन, इसमें कोई भी डिस्टरबेंस होता है तो लाइक हमारे ब्रेन में कुछ ना कुछ या फिर हमारे जो रिसेप्टर्स है उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ डिस्टरबेंस है, इसी वजह से हमारे टेस्ट सेंसेस के अंदर डिस्टरबेंस आ रहा है. तो viral contamination can lead to origin of serious damage to the brain and spinal cord, including encephalitis and severe acute demyelinating lesions. जो हमारे न्यूरॉन्स है जो माइलिनेशन और demyelinated है उनमें demyelinating lesions शुरू हो जाते हैं. COVID-19 patient shows convulsions, delirium, altered consciousness, restlessness, dysgeusia due to infection in the brain. The neurological symptoms based on their severity. जैसे जो कोई भी डिजीज होती है उसमें जो भी सिम्टम्स होते हैं उनको हम लाइक सीवियरिटी के बेस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. एज वी हैव डिफरेंशिएटेड इनटू 3 स्टेजेस. फर्स्ट इज माइल्ड स्टेज. माइल्ड स्टेज में जो भी सीएनएस पे इफेक्ट आएंगे उसमें हेडेक पहला सिम्टम होगा, देन सिम्टम डिजीनेस हो सकता है, डिस्टर्बेंस ऑफ द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, जो हमारी कॉन्शियसनेस है उसमें भी डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिलेगा. देन मॉडरेट सिम्टम पे है एटेक्सिया. इज लाइक जो हमारी मसल मूवमेंट्स है, कोऑर्डिनेशन उनका है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जो वॉलेंटरी मसल्स है. एपिलेप्टिक है, एपिलेप्सी की तरफ पेशेंट मूव कर सकता है. मैनिफेस्टेशन एंड स्ट्रोक. स्ट्रोक इसलिए है बिकॉज ACE2 रिसेप्टर्स हैं वो ब्लॉक हैं, इसलिए ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है. ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं है तो कहीं भी लैक ऑफ ब्लड अकर हो सकता है, उससे स्ट्रोक की कंडीशन में पेशेंट जा सकता है. सीवियर जो भी सिम्टम्स होंगे उसमें एजुशिया, एनोस्मिया, न्यूरेल्जिया. एजुशिया एज वी ऑल नो लॉस ऑफ टेस्ट, एंड एनोस्मिया लॉस ऑफ स्मेल, एंड न्यूरेल्जिया इज लाइक नर्व पेन. In these diagrams, headache, loss of smell, and dizziness. Various possible explanations have been reported for SARS-CoV-2 induced CNS damage, including entry into the brain through the blood circulation. जो भी इसके कॉम्प्लिकेशंस है वो रिपोर्ट किए गए हैं बिकॉज जो भी हमारा ब्लड बेरियर सिस्टम है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू वायरस ब्रेन तक पहुंचता है. ब्रेन सेल्स में भी ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं, वहां पे उनको ब्लॉक करता है, उसकी वजह से ब्रेन सेल्स को भी ये डेड करना शुरू कर देता है. उसकी वजह से काफी सारे जो CNS के कॉम्प्लिकेशंस है वो अकर होना शुरू हो जाते हैं. बाय इन्फेक्टिंग द सेंसरी एंड मोटर नर्व एंडिंग्स, जो हमारे नर्व एंडिंग्स है उनको भी ये इफेक्ट करना शुरू कर देता है, जिससे जो भी हमारे शुरू. एंड सम इनडायरेक्ट मैकेनिज्म लाइक हाइपोक्सिया और लॉस ऑफ ऑक्सीजन. जो ब्रेन में है हाइपोक्सिया और लैक ऑफ ऑक्सीजन की कंडीशन आ जाती है. ऑल्सो कॉज डिक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन ब्रेन टिश्यू, जिससे ब्रेन टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी. उससे ब्रेन के कुछ जो एरियाज हैं वो परमानेंटली उनमें चेंजेस आना शुरू हो जाएगा, वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे. Here in this diagram we can see the different effects of CNS due to SARS-CoV-2. Encephalopathies, meningoencephalitis, neuromuscular disorders, psychiatric disorders आते हैं, neurodegenerative disorders आते हैं. जैसे ब्रेन में हाइपोक्सिया कंडीशन है, ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है और ब्लड जो BP है वो भी मेंटेन नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से भी लैक ऑफ ऑक्सीजन है. तो इस वजह से बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेशंस है वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं. एंड द सेकंड, सेंसरी जो मोटर एंडिंग्स हैं उनकी डिस्टर्बेंस की वजह से एनोस्मिया एंड एजुशिया हो सकता है. थर्ड इज एक्यूट कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस. फोर्थ इज इन्फेक्शियस टॉक्सिस जो निकलते हैं. मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस एंड सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन. नाउ वी विल डिस्कस effects on liver, the master organ of our body. Liver dysfunction is seen in the patients with severe COVID-19 disease. An abnormality in liver functions blood test is generally found in COVID-19 symptomatic patient. During the initial stage of SARS, जो शुरुआत का स्टेज है COVID-19 इन्फेक्शन का, there was a mild to moderate raise of ALT and AST. एलेनाइन ट्रांसएमिनेज एंड एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज, इनका जो लेवल है बॉडी में वो
डिक्रीज और इंक्रीज हो जाता है। इसके डिस्टरबेंस की वजह से काफी सारे और ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट आ सकते हैं और लिवर पे भी इफेक्ट आ सकता है। डिक्रीज इन सीरम एल्ब्यूमिन एंड इंक्रीज इन सीरम बिलिरुबिन लेवल्स इन द पेशेंट। जो पिगमेंट्स है लाइक बिलिरुबिन है, इनके भी लेवल में डिस्टरबेंस आ जाता है। It has been reported that the severity of liver damage was directly proportional to severity of cases of SARS patient. जितना ज्यादा केस जो सीवियरिटी होगा पेशेंट में, सार्स पेशेंट में, उतना ज्यादा लिवर को डैमेज होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज एएलटी लेवल और एएसटी लेवल्स में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होना शुरू हो जाएगा। एएलटी elevation was found in 16 to 53%, 30% of patients. As अर्पण डिस्कस जीआईटी सिम्टम्स होते हैं, उनमें से फिर जो लिवर में एएलटी लेवल है वो 16 to 53% पेशेंट्स के अंदर इंक्रीज मिला है। नाउ इफेक्ट्स ऑन किडनी। COVID-19 complicates the management of patient on dialysis and with the kidney transplantation. जो भी डायलिसिस पेशेंट होते हैं उनमें बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है कोविड-19 में के मैनेजमेंट के अंदर। उनको मैनेज नहीं किया जा सकता, बिकॉज ब्लड का जो मेंटेनिंग सिस्टम है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रखा है। ब्लड प्रेशर का जो मेंटेनिंग इफेक्ट है, रास सिस्टम में बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रखा है। एंड किडनी ट्रांसप्लांटेशन जैसे हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, उसकी वजह से भी किडनी ट्रांसप्लांटेशन के जो पेशेंट्स हैं उनमें भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। ACE2 रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन किडनीज एज रिसेप्टर्स हैं जो अलग अलग ऑर्गन्स पे पाए जाते हैं ACE2 रिसेप्टर के, तो किडनी में भी बहुत ज्यादा रिसेप्टर्स होते हैं। द वायरस इज फाउंड इन ग्लोमेरुलर सेल। जो भी इनसे जो वायरस बाइंड करता है वो ग्लोमेरुलर सेल्स में मिलेगा, ट्यूबुलर सेल्स में, एपिथेलियल सेल्स में मिलेगा एंड पोडोसाइट्स ऑफ किडनीज में भी मिलेगा। AKI is commonly secondary to systemic abnormalities including diabetes, hypertension, chronic kidney disease, hypoxemia, and coagulopathy. Cytokinin storm can cause drastic hypoperfusion and AKI. Proteinuria, protein in urea, hematuria, blood in urine, increased level of blood urea nitrogen, BUN, and serum creatinine were present. Among kidney transplant recipients, initially fever is present in only about one half and diarrhea is present in about 1/4 of the patients. These was the effect of vital organs. Now we will discuss effects on other organs, like effect on coagulation. ब्लीडिंग इज नॉट कॉमन इन कोविड-19। जो कोविड-19 है उसमें ब्लीडिंग कॉमन नहीं है। अगर ब्लीडिंग होता है तो उसके कॉजेस क्या क्या रहेंगे? उनमें से फर्स्ट है डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, बिकॉज जो एएलटी लेवल था वो भी बढ़ जाता है। इसकी वजह से पेनक्रियाटाइटिस भी हो सकता था, हार्ट डिजीज भी हो सकता है। पेनक्रियाटाइटिस की वजह से जो पेनक्रियाज में भी ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं, उनकी जो सेल्स होते हैं उनपे ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं, इसलिए जो इसकी वजह से हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन पैदा हो जाती है। डिसरेगुलेशन ऑफ ACE2 pathway may cause alteration in glucose metabolism. Pancreatic cells, including both the islet cells and exocrine cell, express a considerable amount of ACE2 receptors. Now, effect on eyes. Effects are found in ocular surface cell in cornea. जो ऑक्यूलर सरफेस है उस पे भी कॉर्निया की, उसमें भी ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं। इसकी वजह से कंजक्टाइवल हाइपरएनीमिया हो जाता है, कंजक्टिवाइटिस हो जाता है एंड आईलिड एडिमा आ जाता है। Now, effect on skin manifestation of COVID-19 are similar to those of other virus and chronic inflammatory disease like acne, eczema, psoriasis, and rosacea. Now, some references we have been found. Textbook of Microbiology by Dr. C.P. Baveja, Textbook of Medical Virology by Baijanti Mala Mishra, Textbook of Microbiology by C.K. Jairam Panikkar, Homeopathic Tip in COVID-19 Coronavirus Fact Sheet by Central Council for Research in Homeopathy. Thank you. That's all. Thank you very much. That's all, sir. Yes, sir.